Good morning, students. Myself, Manoj Kumar Sharma. I'm your chemistry mentor. Students, I welcome you all in Hargat Pathshala. Students, we are doing organic chemistry, and in that we are doing some basic principles and techniques of class 11th and its lecture 14th. बच्चों, उम्मीद करता हूं आप जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री मेरे साथ एंजॉय कर रहे होंगे। बच्चों, आज का जो सब टॉपिक है दैट इज आइसोमरिज्म। और बच्चों, हाल ही में हमने नॉमेनक्लेचर कंप्लीट कर लिया है। होप यू हैव एंजॉयड और यू हैव डन दैट प्रॉपर्ली and each and every concept related to the nomenclature is clear to you. So this I am expecting now. So in future lectures, I will take you in that way only, beta. If you have not done the nomenclature properly, beta, go through those videos so that you can understand nomenclature properly. So students, let's start our today's subtopic, that is isomerism. Bachcho, sometimes there are the different compounds beta which are having the same molecular formula but they are having the different properties. और यही phenomenon जो है बेटा of the existence of two or more compounds which possess the same molecular formula but different properties beta, that phenomenon is known as isomerism. और ये जो different compounds रहते हैं बेटा, क्लियर, जिनका आपका फॉर्मूला तो सेम है लेकिन जो प्रॉपर्टीज डिफरेंट है बेटा, सच डिफरेंट कंपाउंड्स आर कॉल्ड आइसोमर्स। क्या कहेंगे बेटा इन डिफरेंट कंपाउंड्स को? आइसोमर्स, जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम है लेकिन प्रॉपर्टीज आर डिफरेंट बेटा। तो ऐसे कंपाउंड्स को हम क्या कहेंगे? आइसोमर्स। ना बच्चों, टाइप्स ऑफ आइसोमरिज्म। बच्चों, there are the two types of isomerism. One is structural isomerism and other is stereoisomerism. बच्चों, ये जो types of isomerism है, अगर आप ध्यान से इसको देखें, ये इनके जो नाम है बेटा यही आपको बता रहे हैं कि what kind of isomerism they are. First of all, structural isomerism बेटा, ऐसे बेटा ऐसे कंपाउंड्स जिनके क्या है, स्ट्रक्चर डिफर कर रहे हैं लेकिन आपके फॉर्मूला क्या है, दे आर योर सेम, तो बेटा दे विल एग्जिबिट योर स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म। ऐसे कंपाउंड्स क्या एग्जिबिट करेंगे बेटा? स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म। लेकिन स्टीरियो आइसोमरिज्म, स्टीरियो वर्ड बेटा दैट इज रिलेटेड टू द स्पेशल अरेंजमेंट। नाउ इन केस ऑफ योर स्टीरियो आइसोमर्स बेटा, दे हैव सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला but they differ in the arrangement of the atoms or group of atoms attached to the central atom beta. Clear? It means structure is also same. So we can say beta, in case of your stereoisomers, we have the same, you can say different compounds, they have same molecular formula beta, same structure, but they differ in the relative positions of the atoms or group of atoms attached to the central atom. And beta, यही phenomenon क्या कहलाएगा बेटा? Of having the same formula beta and same structure but special arrangement of the atoms or group of atoms that is so different. That phenomenon is called stereoisomerism. But beta, we will discuss the structural isomerism in detail because this is in your syllabus. Now बच्चों, let's discuss the structural isomerism. जैसे अभी बताया बेटा मैंने, जैसे कि आपको नाम ही बता रहा है कि sometimes there are the different compounds बेटा जिनका molecular formula क्या है? Same है, but they have the different structures. Different structure means जो आपकी अरेंजमेंट है बेटा एटम्स की विद इन द मॉलिक्यूल, दैट इज गोइंग टू बी डिफरेंट। वो क्या है? डिफरेंट है। तो ऐसे डिफरेंट कंपाउंड्स क्या कहलाएंगे आपके बच्चों? स्ट्रक्चरल आइसोमर्स। और फिनोमिनन क्या कहलाएगा आपका बेटा? स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म। होप स्टूडेंट्स दिस इज क्लियर। नाउ बेटा,
टाइप्स ऑफ स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म. बच्चों, देयर आर द 6 different types of structural isomerism beta. So first one is your chain or nuclear isomerism, and then position isomerism, and then functional isomerism beta, and then metamerism, then tautomerism, and then ring chain isomerism. So beta, before going through these different types of isomerism, we'll discuss the types of stereoisomerism as well. Now beta, stereoisomerism, जैसे मैंने पहले कहा, stereoisomerism जो that is related to the spatial arrangement of the atom or group of atoms around the central atom beta. और बेटा ये जो different spatial arrangements हैं in the 3-dimensional space बेटा, they are said to be a stereoisomers. लेकिन बेटा बशर्ते यहां क्या होना चाहिए, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मस्ट बी सेम, और आपके स्ट्रक्चर्स क्या होने चाहिए, दे मस्ट बी सेम. और बच्चों ये दो तरह का है, दैट इज ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म और ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म. लेकिन बेटा इस लेक्चर में हम इनके टाइप्स विल नॉट डिस्कस. क्लियर? सो we'll discuss it separately in the separate lecture beta, because this is not in the syllabus of your class +1. Now bachcho, let's discuss the types of your structural isomerism beta. So first structural isomerism is chain or nuclear isomerism. बच्चों यहां भी देखें अगर ध्यान से आप, तो ये नाम ही बता रहा है that ऐसे कंपाउंड्स बेटा, डिफरेंट कंपाउंड्स रादर, जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम है, लेकिन दे हैव डिफरेंट अरेंजमेंट ऑफ द कार्बन एटम्स विद इन द मॉलिक्यूल. मीन जो कार्बन कार्बन चेन है दैट इज गोइंग टू बी डिफरेंट बेटा. इज दैट क्लियर? सो ऐसे डिफरेंट कंपाउंड्स क्या कहलाएंगे आपके बेटा, चेन और न्यूक्लियर आइसोमर्स. और फिनोमिनन क्या कहलाएगा आपका, चेन और न्यूक्लियर isomerism. Hope students this is clear, and this will be much clear with the help of an example. Let's take some example बच्चों. Let's take C5H12 जो है बेटा, let's say that is going to represent the different compounds. Let's say this is some linear chain beta, straight chain is there, and since there are the 5 carbon atoms and there are the single bond between the different carbon atoms beta, and they are all linked with each other and they are going to form, क्या बना रहे हैं ये, straight chain बना रहे हैं. Is that clear? So this is a normal pentane. और बच्चों जब क्या हो रहा है, ब्रांचिंग होगी बेटा. अब क्या हो रहा है यहां, the position of the carbon atoms is going to differ beta. Now branching is taking place over here. Now this is a branched isopentane beta. और ज्यादा ब्रांचिंग होगी बेटा. अब नाउ 2 पोजीशन पे क्या है आपके, 2 मिथाइल ग्रुप्स आर देयर. सो बेटा दिस इज योर 2,2 डाइमिथाइल प्रोपेन बेटा, और दैट इज योर नियोपेंटेन. अगर आप इन तीनों में देखें बेटा, नाउ दीज डिफरेंट कंपाउंड्स दे आर गोइंग टू डिफर इन द वे ऑफ लिंकेज बिटवीन द कार्बन कार्बन एटम. मीन्स आपका पहले ये क्या है, दिस स्ट्रेट चेन, देन योर ब्रांचिंग इज टेकिंग प्लेस. मीन्स जो आपकी अरेंजमेंट है बेटा इस इनमें कार्बन एटम्स की, दैट इज गोइंग टू बी डिफरेंट. इज दैट क्लियर? बट फॉर्मूला इज सेम. एंड बेटा सिंस दे आर हैविंग योर सेम फॉर्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चर्स, क्लियर, सो दे आर योर स्ट्रक्चरल आइसोमर्स बेटा. लेकिन है क्या है ये बेटा, दे आर योर चेन आइसोमर्स. दे आर योर चेन आइसोमर्स. सो बेटा नाउ नेक्स्ट इज ऑफ पोजीशन आइसोमेरिज्म. इसमें बेटा नाम ही बता रहा है कि पोजीशन आइसोमेरिज्म क्या हो सकता है. ऐसे कंपाउंड्स बेटा जिनका सेम स्ट्रक्चर है ऑफ द कार्बन चेन, मतलब सेम कार्बन चेन है, लेकिन दे डिफर इन द पोजीशन ऑफ द सब्स्टिट्यूएंट एटम बेटा. मल्टीपल बॉन्ड की पोजीशन में डिफर करेंगे या फिर फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन में ये डिफर कर सकते हैं बेटा. इज दैट क्लियर? तो ऐसे डिफरेंट कंपाउंड्स क्या कहलाएंगे आपके, पोजीशन आइसोमर्स. और फिनोमिनन को क्या कहेंगे हम बेटा, पोजीशन आइसोमेरिज्म. एंड नाउ बेटा लेट्स टेक सम एग्जांपल. लेट्स से सम C5H10 is there beta. This is representing some alkene. Clear? Let's say beta this is a pent 1 in. Now
this is pent 1 beta. Is that clear? Another one beta, let's say this is pent 2. Now beta, how they are going to differ? इनका क्या है? फॉर्मूला सेम है, अरेंजमेंट ऑफ द कार्बन एटम इज सेम, लेकिन दे आर गोइंग टू डिफर इन द पोजीशन ऑफ द दिस डबल बॉन्ड बेटा. नाउ इसकी पोजीशन 1 है बेटा और इसकी पोजीशन 2 है. इज दैट क्लियर? दैट्स व्हाई वी कैन से these are the position isomers or phenomenon of having these different compounds beta due to the change in position, that is called position isomerism. Hope students this is clear. Let's take the case of your alcohols beta. Let's say C3H8O is there. Let's say this is all propanol beta. Yeah, you can say propan 1-ol. Then this is propan 2-ol beta. Is that clear? अगर आप यहां ध्यान दे, आप कार्बन कार्बन चेन सेम है. फर्स्ट ऑफ ऑल बेटा दे हैव सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला. सेकंड बेटा कार्बन चेन सेम है. देन व्हाट इज द डिफरेंस? द पोजीशन जो है आपकी इस फंक्शनल ग्रुप की दैट इज डिफरेंट. यहां फर्स्ट पोजीशन पे आपका दिस अल्कोहलिक ग्रुप इज देयर और जबकि यहां आपका सेकंड पोजीशन पे है बेटा. So these are the different compounds which differ in the position of the functional groups बेटा. तभी हम इनको क्या कहते हैं? Position isomers. क्या कहते हैं? Position isomers. और phenomenon क्या कहलाएगा आपका? Position isomerism. Hope students this is clear. ना बच्चों functional isomerism, यहां भी नाम ही बता रहा है बच्चों. Functional isomerism means ऐसे कंपाउंड्स बेटा जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है? सेम है, बट दे डिफर फ्रॉम ईच अदर इन केस ऑफ योर फंक्शनल ग्रुप्स बेटा. और ऐसे डिफरेंट कंपाउंड्स क्या कहलाएंगे? आपके फंक्शनल आइसोमर्स. और फिनोमिनन क्या कहलाएगा आपका? फंक्शनल आइसोमरिज्म. अगेन बच्चों आई एम रिपीटिंग बेटा, compounds having the same molecular formula but different functional groups are called functional isomers beta, and the phenomenon is called functional group isomerism, or you can say functional isomerism. बच्चों let's take the example beta. Let's say this was C3H6O. Now beta this molecular formula will have the different functional groups like aldehydes, ketones or ethers. Let's say what is the possibility बच्चों? अब बच्चों यहां देखें, this is aldehyde group. तो बेटा this is 1 2 3 propanol. This is propanol beta. Let's take another case. This is 1 2 3 prop-ane beta. This is propan 2-one beta. That is a propanone. Yeah, simple beta. So this is propanone. Then let's take the next case. Now you saw CH3O CH3. What is this? This is ether. That is a methoxymethane. तो बच्चों अगर आप इन तीनों को देखें, इनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है. मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, बट दे डिफर in case of your functional groups beta. They are having different functional groups. So बेटा ऐसे आइसोमर्स क्या कहलाएंगे? आपके फंक्शनल आइसोमर्स. और फिनोमिनन क्या कहलाएगा आपका? फंक्शनल आइसोमरिज्म या फिर फंक्शनल ग्रुप आइसोमरिज्म. होप स्टूडेंट्स दिस इज क्लियर. ना बच्चों लेट्स टेक द केस ऑफ योर कार्बोक्सिलिक एसिड एंड एस्टर्स. लेट्स से बेटा molecular formula of some ester or carboxylic acid beta, that is C2H4O2 beta. Let's say this is a CH3C11OOH beta. This is ethanoic acid. This is carboxylic acid. Now beta let's take some ester. Ester का formula क्या रहेगा बेटा? That is a HC. Now beta this is somewhat wrong beta. ये इसकी जो position है that is going to beta shift here. Now this is a H C11OOCH3 बेटा. चलिए मैं सेपरेटली लिख देता हूं इसको बेटा. नाउ बेटा दिस इज सम एस्टर, और ये एस्टर क्या है बेटा? दैट इज मिथाइल मिथेनोइड. अगर आप यहां देखें, इसका क्या देखें बेटा? अगर यहां आप देखें बेटा, देयर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इज सेम,
but they differ in case of your functional groups बेटा। अब यहां फंक्शनल ग्रुप COOH है, यहां बेटा C डबल बॉन्ड OO है। Is that clear? So now they differ with respect to the functional groups, but they are having same molecular formula, hence they are again your functional isomers. Hope students this is clear. Now बच्चों metamerism, बच्चों sometimes there are the different compounds जिनका molecular formula same है, but they have the different number of carbon atoms or alkyl groups on either side of the functional groups बेटा। और ऐसे डिफरेंट कंपाउंड्स क्या कहलाते हैं आपके बेटा? मेटामर्स। क्या कहलाते हैं आपके? मेटामर्स। और फिनोमिनन क्या कहलाएगा आपका? मेटामेरिज्म। और बच्चों लेट्स टेक द केस ऑफ ईथर्स बेटा। जैसे सपोज दिस इज अ फंक्शनल ग्रुप, ऑन दिस साइड वी हैव 2 carbon atoms beta, means this is ethyl group beta. On this side also we have the 2 carbon atoms, means ethyl group. So this is some ethoxy ethane beta. But here if you see beta, this was CH3 CH2 CH2, they are the 3 carbon atoms on this side of this functional group beta. और जबकि इस साइड कितने? सिर्फ एक ही कार्बन है, means one alkyl, that is a methyl group is there beta. Is that clear? सो अगर इन दोनों को आप देखें, इन दोनों का फॉर्मूला तो सेम है, लेकिन दे डिफर इन द नंबर ऑफ कार्बन एटम्स और alkyl groups on either side of the functional group. So they are said to be metamers, and phenomenon is called metamerism. Hope students this is clear. So this is a, I think नाम मैंने नहीं बताया बेटा, ethoxy ethane is there and this one methoxy propane. Now बच्चों thioethers. Now बेटा thioethers में क्या रहता है आपका? Oxygen is replaced by your sulfur. Rest is same. Let's say this is a some thioether बेटा, इस साइड सल्फर के 2 हैं, इस साइड भी 2 कार्बन एटम्स हैं, मींस इथाइल ग्रुप्स आर देयर ऑन बोथ साइड्स बेटा। लेकिन यहां क्या है? एक साइड प्रोपाइल है, एक साइड आपका मिथाइल है। Now again these are your metamers beta. This is a diethyl thioether beta, whereas this is a ethyl propyl thioether. Now बच्चों let's take the next isomerism beta, that is tautomerism. बच्चों ये एक स्पेशल तरह का फंक्शनल आइसोमेरिज्म है, जिसमें क्या रहता है? जो आपके आइसोमर्स हैं दे एग्जिस्ट इन डायनामिक इक्विलिब्रियम विद ईच अदर बेटा। और ये बेटा दिस अराइजेस ड्यू टू द माइग्रेशन ऑफ हाइड्रोजन एटम फ्रॉम वन पॉलीवैलेंट बेटा एटम टू द अदर विद इन द सेम मॉलिक्यूल। ये एग्जांपल से और ज्यादा क्लियर हो जाएगा बेटा। और बच्चों ये जो आपके आइसोमर्स जो मिलते हैं दे आर कॉल्ड टॉटोमर्स। और ये कैसे होंगे बेटा? कैसे मिलेंगे ये आइसोमर्स? ड्यू टू द माइग्रेशन ऑफ द हाइड्रोजन एटम फ्रॉम वन पॉलीवैलेंट एटम टू द अदर बेटा। ठीक है। और फिनोमिनन क्या कहलाएगा आपका बेटा? टॉटोमेरिज्म। सो बेटा अगेन आई एम रिपीटिंग बेटा, टॉटोमेरिज्म इज अ स्पेशल काइंड ऑफ योर फंक्शनल आइसोमेरिज्म, जिनमें क्या रहता है बेटा? in which these different isomers they exist in dynamic equilibrium with each other. और बेटा ये अराइज करता है ड्यू टू द माइग्रेशन ऑफ वन हाइड्रोजन एटम फ्रॉम वन पॉलीवैलेंट एटम बेटा टू द अदर विद इन द मॉलिक्यूल। नाउ लेट्स टेक द एग्जांपल बेटा। ओके, बिफोर गोइंग इनटू द एग्जांपल बेटा, टॉटोमेरिज्म जो दैट इज आल्सो कॉल्ड डेस्मोट्रोपिज्म। व्हाई? बिकॉज डेस्मोस मींस बॉन्ड्स बेटा और ट्रोपोस मींस टर्न, तो मींस योर बॉन्ड्स आर गोइंग टू चेंज बेटा। Is that clear? So how beta? Let's say one of the sigma bond go into the pi bond beta, and then pi bond is going to into your single bond, sigma bond beta rather. So let's say beta. So now this is some, let's say CH3 is there, C double bond O CH3 is there. Beta this is also CH3. मैंने इसको expanded form में लिखा so that you can understand it in a better way. बच्चों this is a propanone. This is some ketone, और
कॉमन नेम इज एसीटोन बेटा। ना बच्चों, अब जब ये वाला जो आपका CH बॉन्ड है, इफ दिस इज गोइंग टू शिफ्ट टू हियर, देन व्हाट विल हैपन, इसके बीच में क्या, इस कार्बन और इस कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड बन गया, जस्ट सी हियर। नाउ हियर जब आपका ये वाला इलेक्ट्रॉन पेयर यहां आ रहा है और ये वाला इलेक्ट्रॉन पेयर आपका ऑक्सीजन पे शिफ्ट कर गया, देन दिस विल अक्वायर योर नेगेटिव चार्ज। तो यहां से जो प्रोटॉन जा रहा है बेटा, ये कहां चला जाएगा, दैट विल गो टू दिस ऑक्सीजन। तो आपका यहां क्या हो गया, CH2O की जगह आपका क्या हो गया बेटा, COH, और यहां C और C के बीच में क्या हो गया आपका डबल बॉन्ड। ना बेटा, दिस इज बिनाइल अल्कोहल, दिस इज सम बिनाइल अल्कोहल, इज दैट क्लियर? Now beta, these two forms, I must say, they are in dynamic equilibrium with each other. और बेटा ये दोनों ही क्या कहलाएंगे आपके टॉटोमर्स। ये क्या है, टॉटोमर्स हैं। और ये टॉटोमरिज्म या टॉटोमर्स कैसे बने बेटा, ड्यू टू द माइग्रेशन ऑफ दिस हाइड्रोजन एटम फ्रॉम दिस पॉलीवेलेंट कार्बन एटम टू द दिस ऑक्सीजन एटम बेटा, यही बताया अभी। तो these are your different tautomers बेटा, clear? Now this is a keto form beta, and this ene or ol is there, then this is enol form beta. So hope students this tautomerism is clear. Now बच्चों, next and last is ring chain isomerism. बच्चों नाम ही बता रहा है, sometimes there are the different compound जिनमें क्या होता है, same molecular formula है, but they possess the ओपन चेन एज वेल एज साइक्लिक स्ट्रक्चर्स बेटा। और ये जो आपके ओपन चेन और साइक्लिक स्ट्रक्चर जो मिलेंगे, दे आर डिफरेंट आइसोमर्स बेटा, और उनको क्या कहेंगे हम, रिंग चेन आइसोमर्स बेटा। क्या कहेंगे हम, रिंग चेन आइसोमर्स। और फिनोमिनन क्या कहलाएगा आपका, रिंग चेन आइसोमेरिज्म। होप स्टूडेंट्स दिस इज क्लियर। लेट्स टेक एन एग्जांपल नाउ बच्चों, दिस वाज C3H6. Let's take, this is some alkane beta, this is propene rather, और पोजीशन भी देखें तो prop1ene बेटा, लेकिन पोजीशन विल नॉट मैटर इन दिस केस, क्योंकि इस साइड से भी अगर यहां भी डबल बॉन्ड होता है बेटा, दैट विल अगेन बी prop1ene, एंड दिस इज ऑल्सो योर prop1ene, सो दिस इज प्रोपीन रादर। ओके बेटा, नेक्स्ट जो है आपका, दैट इज लेट्स से दिस इज साइक्लिक कंपाउंड बेटा, क्लियर? 1 2 3 कार्बन एटम्स आर देयर, and this was cyclopropane beta, this was cyclopropane, this was some alicyclic compound। now beta अगर इन दोनों को देखें आप, they are having the same molecular formula, means that is C3H6। दोनों में ही कितने कार्बन एटम्स हैं, 3 हैं, और हाइड्रोजन एटम कितने बेटा, 6। यहां आप देखेंगे कि ये तो दिख नहीं रहे, दिखेंगे कैसे, दिस इज अ बॉन्ड लाइन नोटेशन बेटा। ये जो आपके इंटरसेक्शंस हैं, दिस आर योर कार्बन एटम्स। अगर इनकी बैलेंस ही पूरी करें बेटा, 2 बॉन्ड्स हैं इसके कार्बन के साथ, तो देयर आर द 2 हाइड्रोजन एटम्स। सो these two are your ring chain isomers. Hope students this is clear. So beta, with this, thank you. Hope you have enjoyed today's lecture. Thank you. Have a nice day.